Okay, so we are live. Yeah. So hi everyone. Today we have Tushar with us. As you can see, he's wearing a lot of winter clothes. He's based out of Kanpur, and of course, after even Uttarayan, we are seeing a lot of heat wave. Sorry, not heat wave, cold wave. There is a lot of almost starting from Delhi to if you go to eastern UP where I am, there is severe cold which has also resulted in a lot of schools, etc., closed. And Tushar, he's an entrepreneur at this stage, but prior to that, he did his BBA LLB from Symbiosis, and after that, he went to University of London, where he took two postgraduate diploma certificates and finished his LLM. And he targets a very niche area, sports law, and that is where when I first read about what he has been doing, I got very intrigued, and I thought, okay, let me get him on this session so that students, learners, wherever are they from, they could get to learn from his experiences. So Tushar, welcome for this session. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Siddharth. It's honor to be on this platform, and I hope people get something because what the thing is, if people get so many things about the information about the certain sector which I'm targeting, so I hope because the thing is, there should not be any about this we should go beyond the any boundary because what we see in today's market, especially in sports and gaming, there's a lot of booming happen. The sports, not only cricket, because we know how the IPL is working, but in other sports like in football we are doing pretty decent for now, as well as in badminton, tennis. So I thought let's target this area, which is something in the future where the India is targeted to bid for the Olympic Games, because we already hosted the Commonwealth Games, the Asian Games in the past year. So I thought this is the right time because the things what is happening in today's trends, as well as the implementation of AI and the biomechanics which is happening, because the medical science is also improving in every 5 years. So it's a good time to start my own law office. So my law firm name is Kateria Sports Law Offices, and I have my practice into this domain to working in the very niche area, because if you have someone who is working that domain, people love to connect with it. Just because I used to be a athlete in Okay, my wow, junior age, I played them at the amateur level. I played cricket, I played football also, so I know about the, and I also played the e-sport, the PUBG Mobile in 2020. I played that, so I know about it, how the organization work, how the inner circle of the administration work, especially in the sporting organization. So there's a reason why I choose this is wonderful. the sector I want to work into it, and this is the reason why. So I always target what are the sectors which is happening. For me, it's sports and gaming. So yeah. वंडरफुल वंडरफुल सो तुषार आपने जब सिम्बियोसिस से बीबीए एलएलबी किया व्हाट वाज योर मोटिवेशन क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि भाई मुझे आउटसाइड इंडिया जाना चाहिए एंड देन आई शुड परस्यू दिस प्रोग्राम सो सिम्बाइसिस से ये था कि मतलब उस टाइम मैंने और भी एग्जाम्स दिए थे। एलसैट उस टाइम चलता था, क्लैट था ही। सो वो भी एग्जाम दिए थे, और फिर एलेट जो होता है, एनएलयू दिल्ली का जो उनका खुद का एग्जाम है, सो वो सब दिया था मैंने। मेरे लिए ये था कि लॉ एज अ सब्जेक्ट ये है कि क्योंकि इंडिया में जब स्पोर्ट्स का जब देखा जाए, क्रिकेट में देखा जाए, क्योंकि 1995 में जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट केस आया था, क्रिकेट ओके एसोसिएशन ऑफ बंगाल वर्सेस दूरदर्शन प्रसार भारती का, जो बड़ा इम्पोर्टेंट केस था उस टाइम, क्योंकि क्योंकि उससे पहले होता क्या था, बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते थे प्रसार भारती को टेलीकास्ट करने के लिए। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कि जब बीसीसीआई अपने टीवी राइट्स बेच सकती थी। तो उसके बाद जो देखेंगे कि इंडिया में जो ट्रेंड चालू हुआ कि बहुत आई बॉल्स मिलने लग गई, लोग ज़्यादा देख रहे क्रिकेट, टीवी पे देखना चालू हुए थे, क्योंकि उस टाइम नया-नया कलर टीवी भी चालू हुआ था, तो लोग को मज़ा आता था। क्योंकि 1992 का जो 1991 1992 का जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया वाला, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद हम लोग ने देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा एरिया है। ऑल्दो थोड़ा लॉ एज़ अ सब्जेक्ट 5 साल का, इट्स अ वेरी लॉन्गर कमिटमेंट। आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लॉ एज़ अ सब्जेक्ट आप ये नहीं कि एक रात पहले पढ़े, मतलब थोड़ा है उसमें, थोड़ा आपको यू हैव टू बी दैट परसिवियरेंस जो आपको दिखानी पड़ती है। यू हैव टू बी कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल्स, क्योंकि मेरे लिए तो यह था कि मतलब कि मैंने उस टाइम भी इंटर्नशिप काफ़ी करी थी।
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर्म्स में मैंने काफ़ी काम किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, आईपी तो ऑलरेडी मतलब कि एक सैचुरेशन आने लग गया था उस टाइम तक, 2020 तक। तो मैंने वो जो मेरा लास्ट ईयर था, सो मैंने 2020 में ही मैं ग्रेजुएट हुआ था सिम्बायोसिस से। तो मैंने उसी टाइम सोचा कि यही अभी टाइम है कि थोड़ा अपना डोमेन शिफ्ट करते हैं। तब मैंने लोगों से पता करना चालू किया कौन-कौन से हैं। उसी बीच मुझे रुस्तम सेठना मिले। सो ही इज़ अ मेंटर एंड ही इज़ समवन हू इज़ राइट नाउ वर्किंग इन द इंग्लैंड फॉर नाउ। सो वो अभी काम कर रहे हैं ओके, मिल्स एंड रीव्स में। सो वो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कैसे स्पोर्ट्स लॉ, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का क्या है, क्योंकि उनके पास डोमेन ऐसा कि वो इंडिया में भी काम कर चुके हैं। पहले वो मतलब कि बहुत फेमस इंडियन लॉ फर्म में काम कर चुके हैं। बिग 6 जो लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, ही वर्क इन दैट। तो उनके पास एक्सपीरियंस था, तो उनसे पता किया मैंने। फिर मतलब कि मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि ठीक है, फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया था। तो मैंने शॉर्टलिस्ट करे कॉलेजेस 2020 में, क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक हो गया था। अभी भी याद है मुझे वो डेट, 16 मार्च को मैं वापस कानपुर आ गया था पैंडेमिक के टाइम में। ओके, तो उसी टाइम मैंने सर्च किया कि क्या अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि उस टाइम हाई फ्रीजिंग भी हो गई थी हर जगह, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी। और जो शिफ्ट हुआ तो उधर से मैंने चालू किया कि क्या है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ई स्पोर्ट्स उस टाइम बड़ा चलन में चालू हो गया था, क्योंकि इंडिया अच्छा परफॉर्म करने लगी इंटरनेशनल इवेंट्स में। फिर उसके बाद चेस एक ऐसा डोमेन चालू हुआ उसी टाइम में कि इंडिया और रशिया दोनों मिलके जॉइंट विनर बने थे, जो चेस ओलंपियाड होता है, बड़ा फेमस इवेंट होता है। तो वो सब देखा, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया और फिर मतलब कि शॉर्टलिस्ट किया। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मुझे मिल गया था, ये सितंबर के आसपास की बात है। और भी जगह का मैं वेट कर रहा था, जैसे नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी हो गई, जो बड़ा स्पेशलाइज्ड है। और शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी है, जो मतलब कि आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो वो मैं तो उस टाइम कोविड था, तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हो गया था, तो मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि मुझे फिर ऑनलाइन ही करनी पड़ी थी क्लासेस। बट ये रहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आपके पास पावर रहती है कि आप कैसे अपने कोर्सेज़ को हैंडल करना चाहते हैं। तो मुझे हेल्प किया था। मैं आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया हूँ। तो मैं थोड़ा बताना ओके, चाहता था कि हाउ हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम माय टाइम, बिकॉज़ आई टूक माय एडमिशन इन 2015 और 2020 में जब मैं ग्रेजुएट किया हूँ लॉ से। फिर उसके बाद 2021 में आई थिंक मेरी जनवरी में चालू हुई थी क्लासेस, और 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया था एलएलएम। तो फिर वो ओके। एक सो बड़ा आपका ये काफ या एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपेयर टू आपने जो व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड एट हुँ, Symbiosis, हुँ। हुँ, हुँ। and you have to make a comparison with this program. What हुँ, was the हुँ। difference which you observed? क्या आपको अंतर लगा? आई मुझे मेरे लिए तो कंपैरिज़न देखिए, एक ये है ना सिम्बायोसिस की अच्छी बात ये है कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी प्रोफ़ेसर्स आते हैं। तो आपको वो एक मिलता है, आपको एक एक्सेसिबिलिटी मिलती है, आपको फॉरेन लेक्चरर्स से बात करने का, वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। वो चीज़ आपको बड़ा हेल्प आउट करती है जब आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली नेटवर्किंग कर रहे हैं। और जिस मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि अगर होता क्या है, सिम्बायोसिस का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि काफ़ी लोग बाहर भी जाते हैं समर स्कूल के लिए, पर आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है कि आपके मतलब इतने से इतने ग्रेड हो। बट ये रहता है कि अगर आपको प्राइवेटली आप जैसे टुलेन यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है ऐसे, आप वो भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स और गेमिंग लॉ से रिलेटेड, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये रहता है कि आपको एक एक्सेसिबिलिटी मिलती है बाहर के लोगों से बात करने की, क्योंकि वो आपके यहाँ आते हैं कॉलेजेस में और पढ़ाते हैं, एक सर्टेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। आई थिंक उस टाइम 2015 की बात है, जब हमारा पहला-पहला मूट एक चालू होता है ना, कि एक मूट कोर्ट का एक्सपीरियंस मिलता है। सो लोग को नहीं पता मूट कोर्ट होता क्या है? तो एक मतलब कि एक तरीके का एक सिस्टम होता है कि जैसे एक कोर्ट में कैसे किया जाता है ना? तो आपको एक प्रैक्टिस के ज़रिए बताया जाता है कि एक टास्क होता है, आपको ये करना पड़ता है। जजेस के सामने बात कैसे करनी होती है, प्रेज़ेंटेशन कैसे देना होता है। सो एक आर्गुमेंट आपको कैसे प्रेज़ेंट करने हैं कोर्ट में। तो एक थोड़ा मतलब कह सकते हैं एक ट्रायल एडवोकेसी टाइप का होता है, आपको हेल्प करता है। सो आई थिंक उस टाइम प्रोफ़ेसर टोन्या कोवालोविंस्की थी उस टाइम, तो वो आए हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो हाँ, उसके बाद लोगों से भी बात हुई, जर्मनी से भी स्टूडेंट्स आए हुए थे उस टाइम लकीली, डेविड उस टाइम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बना था। तो वो एक बड़ी अच्छी कम्राडरी बनती है, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है और वही चीज़ आपको बड़ा हेल्प आउट करता है, जब फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, क्योंकि एक जो बैरियर होता है ना, होता क्या है कि काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, उनको बात करने में दिक्कत होती है। जब आप आपस में लोग मतलब एक डाइवर्सिफ़िकेशन जो होता है ना, सिम्बायोसिस में बड़ी अच्छी चीज़ है।
तो बड़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप से लोग आते हैं, कि कोई तमिलनाडु से, कोई गुवाहाटी से, कोई मणिपुर से है, कोई इंदौर से है, कोई कटक से है, कोई भुवनेश्वर से है। सो ऐसे बड़े डाइवर्स लोग होते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप उनसे बातचीत करते हैं, आप ये सो खुलते और एलएलएम हैं। ओके ग्रेट। सो ये आपका जो एलएलएम स्टडी था, हाउ हाउ वाज इट स्प्रेड आउट? वाज इट इन 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, हाउ वाज इट? सो इट डिपेंड्स। सो एक टाइम लिमिट होती है, आपको उसी टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करने हैं अपने कोर्सेज को। सो मैंने 2021 में मेरा स्टार्ट हुआ था जनवरी फरवरी के टाइम, एंड 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया था एलएलएम अराउंड। मेरा रिजल्ट आ गया था अगस्त के टाइम, आया था 2022 अगस्त में। तो मेरा मतलब कि 1 एंड हाफ ईयर, मानिए वो इतना टाइम लग जाता है एलएलएम में। ऑल्दो और जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग ही रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। इतने कोर्सेज़ है, इतने क्रेडिट कोर्सेज़ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एग्ज़ाम, मेरा तो डायरेक्ट एग्ज़ाम वाला दिया था, मेरा थीसिस वाला नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको थीसिस प्रेज़ेंट करनी पड़ती हैं। जैसे आई थिंक नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में यू हैव टू प्रेज़ेंट योर थीसिस इन योर लास्ट सेमेस्टर। तो वो रहता है। कुछ का क्वाड्रिलेटरल रहता है, कुछ का ट्राई सेमेस्टर का सिस्टम, वो अलग-अलग डिपेंड करता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसीजर है। अब जैसे इंडिया में बात कर लेता हूँ, जैसे मास्टर लॉ स्कूल पुणे से जहाँ मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मतलब 2 सेमेस्टर में आपका 1 ईयर में रहता है, और एनएलएसआईयू है, वहाँ ट्राई सेमेस्टर रहता है, 1 साल में 3 सेमेस्टर है। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने वो होती है ना, इंडिपेंडेंसी होती है हर इंस्टीट्यूट की। तो इसीलिए वो अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, कि वो डिज़ाइन होता है प्रोग्राम। क्योंकि एक जैसे इंडिया में वी हैव बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो हमें वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। और यूके में है क्या, कि बहुत सारे अब वहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स है, तो वहाँ रिक्वायरमेंट बड़ी अलग रहती है लॉ की पढ़ाई की, एलएलएम की ओके पढ़ाई सो की। ओके so आप after completing this LLM, what led you to become an entrepreneur or start something in the sports area? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मेरे लिए तो द थिंग इज व्हाट आई फील, स्पेशली इन इंडिया, एथलीट की जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है इट्स क्वाइट मिनिमलिस्टिक। एथलीट्स को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, उनके पास क्या लीगल राइट्स है। इसलिए जब मैंने, मेरे फादर पूछते कि ये तुम क्यों इस फील्ड में कर रहे हो, तो और ही फील्ड है, कॉर्पोरेट लॉ है, उसमें करो। मैं सोचा नहीं, बिकॉज एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स इज रियली डीपली कनेक्टेड टू मी। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलता, तो मुझे पता नहीं क्या ऐसी परेशानियां होती है एथलीट्स का, जो उनको बहुत फेस करनी पड़ती हैं। होता क्या है कि कभी कभी ऐसे एक बड़ा यंग सा टैलेंटेड प्लेयर है, उसको एनओसी नहीं मिलता है स्कूल से, क्योंकि एनओसी ज़रूरी होता है। अगर कोई अगर अंडर 19 का जो एक जूनियर लेवल का टूर्नामेंट हो, वो ज़रूरी पड़ता है, कुछ एथलीट्स को नहीं मिलता है। तो बात तो लॉयर्स रियली हेल्प देम आउट, कि कैसे क्या करना होता है, स्कूल के साथ कैसे डील करना होता है। इवन अगर कोई स्पॉन्सरशिप डील हो गई, है ना? होता क्या, कि कुछ ऐसे क्लॉज़ेज़ होते हैं जो होने नहीं चाहिए, कि आपको इतने रिक्वायरमेंट पूरे करने हैं, आपको इतने मैचेस खेलने पड़ेंगे, तब आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये अच्छी जगह है जहाँ पर मैं कर सकता हूँ अच्छे से। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि स्पोर्ट्स एंड गेमिंग में ही अपना करियर बनाऊँगा, एंड देन मेरे पास जो एक्सपीरियंस था डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करके, वो मैंने सारा इस्तेमाल किया, एंड देन आई स्टार्ट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर ओन लॉ फर्म, सो दैट यू वर्क इनटू दैट। क्योंकि एक ऐसा मार्केट है स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, जो बड़ा क्लोज्ड नेटवर्क है। सो उससे पहले मैंने बहुत मेहनत करी है, 2020 से मैंने बहुत नेटवर्किंग करी है, और वही नेटवर्किंग करके आप लोगों से बातचीत करके लिंक्डइन के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, बिकॉज़ नाउ इंस्टाग्राम इज़ आल्सो प्ले अ रियली इम्पोर्टेंट रोल। आपको आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत पर्सनल ब्रांडिंग बहुत एम्फसाइज़ देना पड़ता है आपको। तो वो बड़ा आपको हेल्प आउट करता है। तो वही मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट विद इट, लेट लेट हेल्प द एथलीट्स। और वही मैंने बड़ा, जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अल्ट्रुइस्टिक जो मेरा रहता है, कि लोगों के लिए ऐसा काम करने की हेल्प आउट हो, कि ठीक है, लीगल फीस थोड़ा हो जाएगा, वो दैट कैन बी मैनेजेबल, बट फर्स्ट थिंग इज लेट हेल्प द एथलीट्स हु रियली नीडेड आवर हेल्प। इसलिए मैंने लोगों से पॉडकास्टिंग भी करी, पता किया कैसे क्या होता है, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। तो इसलिए मैंने अपनी खुद की लॉ फर्म चालू करी।
ग्रेट। सो एक देयर इज वन जेंटलमैन राजीव वर्मा, ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आपने लॉ पढ़ाई की काफी कुछ एलएलएम यूके में, और फिर वो इंडिया में हाउ इज इट हेल्पिंग? सो बहुत इट रियली डिस्कनेक्ट हेल्प है यू। या 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 सो गो अहेड। बहुत हेल्प आउट करता है, बिकॉज इफ यू सी सर्टेन सब्जेक्ट्स, सर्टेन लॉज है हमारे इंडिया में। एक बड़ा आसान सा मैं आपको देता हूँ, जो हमारे कंपटीशन एक्ट है, वी अडॉप्टेड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम द यूके लॉ। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें वहाँ से ली है। ट्रेडमार्क जो एक्ट है हमारा, ट्रेडमार्क एक्ट, वी ऑल्सो डिराइव मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम द यूके लॉ। बिकॉज़ सर्टेन जो हम लोग को जो हम होता क्या है कि काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स आल्सो। जैसे ट्रेडमार्क लॉ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। और प्लस कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे इंडिया में आई डोंट थिंक काफ़ी लोग को पता भी होगा। जैसे स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इंडिया में बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ का एस्पेक्ट बड़ा अलग चीज़ होता है, क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस जो हमारा रहता है वो क्रिकेट में रहता है। फुटबॉल में बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इंडिया का सिस्टम थोड़ा अलग है। वो चीज़ें बड़ा आपको हेल्प आउट करेगा। जब आप बाहर से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में। एक बड़ा अच्छा चीज़ लगता है मुझे यूके में, जो लॉ फर्म्स का जो एक ट्रेनी सॉलिसिटर का वो सिस्टम है, कि वहाँ पर सॉलिसिटर जो होते हैं वो लॉ फर्म में काम करते हैं। तो 2 साल की उनकी ट्रेनिंगशिप होती है। इंडिया के लॉ फर्म्स में मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे लॉ फर्म्स हैं जो ट्रेनिंग ट्रेनिंगशिप में बहुत काम करती हों, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 डेढ़ साल एक ऐसा पीरियड होता है, जो भी यंग ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं, रिक्रूट होते हैं, क्योंकि इंडिया में देखा जाए जो भी इंटर्नशिप्स होती हैं, वो बड़ी कम होती है, 1 महीना, 2 महीना, लॉन्गर इंटर्नशिप्स नहीं मिलती है। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर इंडिया में हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम लाएँ, एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बना दें। और वही इस पे जो मेरी फर्म है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए दिस इज़ द रीज़न व्हाई नॉट रिक्रूटिंग एनीवन। सो आई एम थिंकिंग टू लेट्स हैव मेक अ एसओपी फॉर द यंग ग्रेजुएट्स हू विल कम ऑन बोर्ड इन माय फर्म। तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं कि ये ऐसा ओके, करा सो जाए। वंडरफुल। सो देयर इज वन अनदर पर्सन, ही हैज आस्क्ड, अलवेरा राशिद खान, आपने ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो एकेडमिक पढ़ाई की, डिड यू सेल्फ फाइनेंस इट या फिर कोई स्कॉलरशिप भी मिली? हाउ डिड यू मैनेज? सो माय फादर फाइनेंस्ड इट। सो मेरे ओके। फादर ने ही फाइनेंस्ड करी थी। स्कॉलरशिप का ये देखिए, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको उनका, जब आप एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, यू हैव टू चेक मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्कॉलरशिप में। मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉट ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बट इन अदर यूके यूनिवर्सिटी, जैसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो गई। इट्स और उसका डेडलाइन आई थिंक मार्च के टाइम ही रहता है। सो बिफोर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। इसलिए कहते हैं कि आप 1 डेढ़ साल पहले या 2 साल पहले आप स्टार्टिंग कर लीजिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, क्योंकि आपका एसओपी रहता है, आपके सारे सर्टिफिकेट्स रहते हैं, मार्कशीट्स हो गई आपकी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, वो चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती हैं, तो उसमें प्रिक्योर करने में टाइम लगता है, 3-4 महीना लग जाता है। सो जब भी जो जो भी अगर कोई भी व्यूअर्स है जो यहाँ देख रहे हैं, आप एटलीस्ट डेढ़ से 2 साल पहले स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि एसओपी में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे ड्राफ्ट बनेंगे, बहुत सारी करेक्शंस होंगी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे, वो चीज़ रहता है। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। अब जैसे इंडिया में दे आर लॉट लाइक टाटा स्कॉलरशिप, दे आर एंड देयर इज़ आल्सो बिरला स्कॉलरशिप वेयर so the Aditya Birla's firm, they have that scholarship. Uh, Aga Khan scholarship is something which is quite relevant, is still time right now, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिल जाएंगी, बट ये रहता है कि आपको बहुत पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत टाइम्स आता है इसमें। और इसलिए ये मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि 2 साल पहले तैयारी चालू करो, सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ एंड देन अप्लाई फॉर इट। और इन केस देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हू आर वर्किंग इन दिस एरिया, जो आपको हेल्प आउट करेंगे। मैंने तो अपने दोस्तों से हेल्प ली थी कि अपनी एसओपी में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आई गॉट कॉन्टैक्ट विद द डायरेक्टर ऑफ माय लॉ स्कूल, सो उधर से मिल गया था। जो इंटर्नशिप, जो भी अगर लॉ स्टूडेंट्स से इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो ट्राई टू गेट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द लॉ फर्म, क्योंकि वो बड़ा हेल्प आउट करता है आपको। अगर आपने लंबी इंटर्नशिप करी है, 2 महीना, 3 महीना, या एक ही फर्म में आपने 2-3 बार इंटर्नशिप करी है,
सो गेट ट्राई टू गेट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम दैट फर्म, इट रियली हेल्प यू आउट। वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा और आपके एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज एक सर्टेन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक उसका एक पॉइंट सिस्टम होता है। एवरी एडमिशन कमिटी इन द यूनिवर्सिटी दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ points table that they will consider into it. Plus, I forget to mention one more thing. Some of the universities have the exemption if you already studied your undergraduation degree in English medium. So you can ask from the admission committee to get the exemption. तो आप exception के लिए apply कर सकते हैं. So some of the universities do provide it. Sheffield Hallam University, they have this. If you completed your 12th from a CBSE or ICC board and you complete if you score more than 70 marks in your 12th board, so you can apply for the exemption from that English. So वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है एडमिशन कमिटी से, तो वो आपको मिल जाता है। मैंने बात करी थी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो मिल जाता है आपको। बट आई थिंक इन यूएस लॉ स्कूल दे रिक्वायर टॉफल स्कोर, सो यू हैव टू गो फॉर दैट। हाँ, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं, आई थिंक यू हैव टू गिव योर आइल्स और टॉफल एग्जाम। Okay, okay. So as far as esports is a very upcoming area, what is your view about that? And any activity you are doing within the esports space? Yeah, so I'm working with two award-winning athletes right now. So last year, so I'm working with the athletes who are playing FIFA. Right now, it's EA Sports FC. So I'm working with these kind of athletes who are playing the internet, not only domestic tournament, but also played with the major Indian events. So I think recent last year जो EISL हुआ था, so उसमें मेरे दो athlete they played performed really well. So all credits goes to them because I just helped them out in certain situation. क्योंकि बात ये ई स्पोर्ट एक ऐसा डोमेन है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। बीजीएमआई नहीं है, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया नहीं है, बहुत सारे वैलोरेंट हो गया, चेस भी। ऑनलाइन चेस कैन आल्सो बी कंसिडर एज ई स्पोर्ट, बट अभी उतनी व्यूअरशिप नहीं, क्योंकि दे आर द सर बिकॉज जो उनकी एलो रेटिंग जो होती है, चेस की हमेशा एक रेटिंग होती है, क्योंकि इतने आई थिंक 2200 मोर पॉइंट्स यू हैव टू स्कोर टू गेट द दैट ग्रैंड मास्टर टाइटल। सो आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, तो इसलिए जो उसके मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं चेस में। बाकी बहुत सारे इवेंट आने लग गए अब तो, काफ़ी सारे पोकेमॉन यूनाइट हो गया है। अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट द थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू कंसिडर दिस अनसर्टेनिटी जो जो ट्रांसफर डील होती है बीजीएमआई में, लोग नहीं जानते, क्योंकि अभी हमारे रेगुलेटेड मार्केट नहीं है ई स्पोर्ट जो है। क्योंकि फुटबॉल में है, क्योंकि फीफा है, तो फीफा के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। सो एक ट्रांसफर विंडो दिया जाता है साल में 2 बार, कि एक प्लेयर एक क्लब से दूसरे क्लब में जाता है। वो अभी ई स्पोर्ट में नहीं है। 1 महीना वो किसी एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, और अगले ही 2 महीने वो छोड़ के जाएगा, दूसरा ई-स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन कर लेगा। से बड़ा एक कंसर्निंग इश्यू है, बिकॉज़ द थिंग, अ लॉट ऑफ द ई-स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन एंड ओनर्स दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी into this kind of athlete, but the thing is this unregulated market, it's बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर ई-स्पोर्ट्स ऑर्गनाइज़ेशन को So even अपने। let's say whether it's a unregulated market, but let's say हुँ, as far as legal activity is concerned within e-sport, हुँ, what are हुँ। the different opportunities legal professionals can involve in e-sport? And what There kind of are there are a lot of documentation or there are a lot of opportunity in e-sport. The thing is, lot of the e-sport athlete, they do not know what the legal rights. A lot of the time, what happen, the esports organizations, the their contract, their terms and condition is quite weird, and for that you have to have at least a lawyer who know the commercial transaction, because the thing is what happened, athletes do not know about their image rights. अब जैसा फुटबॉल में हो गया, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। डेविड बैकम जब रियल मैड्रिड गए थे, उनका जो इमेज राइट्स का क्या होता है, अब जैसे वो एक तो क्लब में गए हैं वो रियल मैड्रिड में, तो एक सर्टेन परसेंटेज उनको मिलेगा, जो भी वो स्पॉन्सरशिप करेंगे। लाइक 40% उनको मिलेगा और 60% रियल मैड्रिड को जाएगा। जैसे 100 रुपए हुए, तो 100 रुपए में 40 रुपए मिलेगा डेविड बैकम को, और 60 रुपए जाएगा रियल मैड्रिड क्लब को। तो वो एक तरीके का हो गया। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक डिफरेंट ब्रीड के प्लेयर जो आए थे रियल मैड्रिड में,
जिनको 60% वैल्यू मिली थी इमेज राइट्स का, 40% क्लब को जाता था। वो तभी हो सकता है वंस यू आर द वेरी रिनाउंस्ड एंड अ वेरी केपेबल एथलीट, देन ओनली यू कैन नेगोशिएट विद सच काइंड ऑफ क्लब। ई स्पोर्ट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जो कभी कदा क्या होता है, जो प्राइस पूल का जो इशू होता है, क्योंकि एथलीट्स को मिलता नहीं कभी कदार, तो कभी कदार वो तो प्रो राटा बेसिस में रखते हैं, कभी कदार ये होता है कि इमेज राइट्स के हिसाब से होता है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है एथलीट्स को, तो इसलिए स्पोर्ट्स लॉयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस whenever you are dealing with esports organization and the esports sector, क्योंकि अभी क्या है इंडिया में, we don't have a broadcasting deal till now. Nordwing Gaming is handling with the help of the Star Sports. सो जो भी अभी जो इन मैचेस होते हैं इंडिया में, आइदर दे आर टेलीकास्टिंग लाइव इन यूट्यूब इन द ऑफिशियल चैनल्स, और दे आर टेलीकास्टिंग इन द स्टार स्पोर्ट्स ऑन दी हॉटस्टार ऐप, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। सो ये चीज़ है, क्योंकि अभी है क्या, अभी बहुत ग्रो कर रहा है, अभी थोड़ा यंग है इंडियन, अभी इंडियन मार्केट उतना मैच्योर नहीं हुआ है। अगर कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूके यूएस में, वेयर द ई स्पोर्ट्स हैपेंड वे बैक इन 2000, वहाँ बहुत, अब तो बहुत मैच्योर मार्केट हो गया है। इवन इन द रशिया ऑल्सो, इंडिया में भी हो रहा है, वो टाइम लगेगा बट स्टिल, क्योंकि एश अगर इधर ही देख ले, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो इधर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया है, इवन सिंगापुर एंड थाईलैंड, दे हैड अ वेरी प्रोफेशनलिज्म, वहाँ बहुत अच्छे से वहाँ मैनेज किया जा रहा है। इवन इन चाइना ऑल्सो, चाइना परफॉर्म रियली वेल इन टू द ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जो स्पेशली इन बीजीएमआई और पबजी मोबाइल जो उनका है, वहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो उनका एक एक सिस्टम बनाया है उन लोग ने प्रॉपर, इंडिया में वो सिस्टम है नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग के लिए कि जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उसको बड़ा ठीक किया जाए, थोड़ा सिस्टम में लाया जाए, क्या चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया स्पोर्ट्स लॉयर्स के लिए कि आप इन्वॉल्व होइए इस सेक्टर में खासकर, क्योंकि एथलीट्स को नहीं पता है। ई स्पोर्ट्स एथलीट भी बहुत, दे आर हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग पबजी मोबाइल और वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी में तो हम लोग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया अभी इस साल, लास्ट ईयर हम लोग का जो हुआ था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडिया रैंक सेकंड इन दैट टूर्नामेंट, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग आने वाले डोमेन्स में। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इट द थिंग इज स्काई इज द लिमिट फॉर नाउ, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि बहुत सारे गेम अब आ गए मार्केट में, और हर उस पे प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स अब चालू हो गए हैं, एक रेटिंग चालू होने लग गई है अब। ओके, ओके। सो ग्रेट। या सो मैं भी कुछ दिनों पहले, आई थिंक मे बी 1 वीक या 10 दिन पहले, आई वाज रीडिंग अ न्यूज़ आर्टिकल अबाउट एमएस धोनी. सो या probably there was some individual who tied up with him in order हम्म, to co-branded a kind of school rollout. राइट, And then Dhoni had to file a case that, okay, this person, despite maybe not meeting all the obligation, he went ahead and हम्म, opened all these school branches. So there was, of course, an issue. हम्म, And yeah, of course, in our case, I would say the athletes or the sports person are not too educated. हम्म, So probably I'm going sideways, but even if you, let's say, take the plight of Haryanvi maybe wrestlers and हम्म, the kind of they had face off they had with the so-called regulatory body for wrestling, हम्म, I हम्म, would say that a bit of contribution goes also in terms of their ignorance about their legal rights. So हम्म, from all that perspective, I think yes, law is very, very important within that perspective. And of हम्म, course, the countries which are a bit more evolved, which have more systems and processes. Say, for example, even you talked about Singapore and all, and of course, EU as well as UK. There is a lot of opportunity to learn from them because they are राइट, much more professionally run. India, हम्म, unfortunately, that is a sad story. But many cases, even in the sports committee, whether players or selections are there, where हम्म, maybe whether it is cricket or any other, there is a lot of political influence which goes. इंडीड, Uh, इंडीड, uh, yes, so people are also preferred. So many cases, players get dropped. So even if, let's say, our हम्म, international team has to be international team has to travel from the cricket, the existing cricket pool of players, there a lot of हम्म, preferential treatment happens. So yes, law has a lot of role to play in all those areas, so that a very watertight regulations are there to judge the relationships, and unfavorable treatment is not done to sports persons.
Yes. Indeed. The So so let me add some of the things because you mentioned about it that what happened to the women wrestlers, what happening with the Wrestling Federation of India. The thing is, due to the lack of the ethic commission in India, because once we have the ethic commission, a lot of the things can get resolved in India, because due to that, majority of the time these cases will get increases. Because अगर हम लोग भूले नहीं, 2010 2008 2010 के टाइम मुझे याद है, there's a hockey coach, he was coaching the women Indian women team, and he also get the allegations of the molestation at that time. बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम। तो वो है क्या कि अभी तक हमारे पास एथिक कमीशन नहीं है। एथिक कमीशन आएगा, व्हाट विल हैपन, these people who are handling the sports federations in India, they will get banned because ethic commission बड़ा strong होता है। They took these things very seriously if we compare in with the UK also। प्लस द थिंग okay. इज, अभी हमारे पास स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है, स्टिल न्यू, अभी हम लोग उतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल Okay. जो भी स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन के मैटर, इट्स गोज टू दी कैस, द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, उधर जाते हैं। इंडिया में Okay. वी स्टिल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे मैच्योर होगा, कैसे उस पे काम होगा। है मतलब कि अब आर्बिट्रेशन सेंटर्स खुल गए हैं, बट आर दी Sure. athletes are opting for it or not? Most of the time they are not, they are prefer to go into this huge litigation process। But we as a lawyer I always advise them to at least go for the arbitration procedure। होता क्या, थोड़ा क्विक होता है, एटलीस्ट थोड़ा जो उसका जो अवार्ड होता है, बिकॉज आर्बिट्रेशन में ऑर्डर नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट द अवार्ड दैट बी गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। तो इसलिए ये Okay. बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, बट स्टिल जो अभी जो चल रहा है इंडिया में, वी नीड एथिक कमीशन, जो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा टू हैंडल सच काइंड ऑफ Sure. इश्यूज जो अभी चल रहा है अभी। इट बिकॉज सैडली एट द ओनली पीपल हु गेट अफेक्टेड इज आर द एथलीट्स। Sure. Sure. They put their Okay. heart and Thanks. soul. So yeah, Agreed. this is the thing. Okay, no, great. So we are all at the end of the session. So any two, three suggestions, Tushar, you would have for someone who is looking for maybe let's say bachelor's, master's degree from outside, Mhm, जो उनको mhm, ध्यान देना चाहिए इस courses selections में, mhm. कोई ऐसे suggestions आप एक दो देना चाहेंगे? First is the preparation. Start to as early as possible. Prepare for it, क्योंकि बहुत ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत टाइम लगता है। जो पर्सनल स्टेटमेंट हो गया है, रिकमेंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया है, सर्टिफिकेट्स हो गए हैं, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। सेकंड, जो भी आप रिसर्च होगी, to talk to the people who pass from that university, वो बड़ा हेल्प आउट करेगा आपको टू फिल्टर आउट दैट इन विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गिव द मोस्ट प्रेफरेंस। because ranking kuch bhi ho, you have to talk to the Okay. people who are working on, not only studied from that university but also right now who is working in your preferable sector। वो आपको ध्यान देना Okay. पड़ेगा। तो मैंने वो किया था, मैंने स्टार्टिंग में लोगों से पता किया, तो इसीलिए मैंने फिर इसलिए मैंने लिया। थर्ड, perseverance। law as a subject you cannot कि वो it's not like a data science or data analytics, it will take a lot of time, क्योंकि एज अ लॉयर इट विल टेक टाइम टू सेट अप योर प्रैक्टिस। अब तो ये है कि अब तो इन दिस डिजिटल एरा आपके लिए थोड़ा चीजें आसान होगी, बिकॉज नाउ यू कैन डू दिस surrogate marketing, what I say, illegal because Barcos of India, they restrict you to do the open marketing. We cannot put the hoardings, the big hoardings like the other companies, other organizations, they do it। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। So yeah, perseverance is something that you have to be, क्योंकि वो हर दिन आपको लगेगा कि अरे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग दिस, मैं यही से क्यों, बट यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। नहीं, you are committing towards a bigger goal, what you wanted to do it, so if you wanted to work into the sport industry, you have to be patient। आता है, थोड़ा टाइम लगता है, because at the end of the day the star will get aligned at the end of the day, and it will be become more fruitful for people who want to work into that industry। so मेरे लिए तो यही है, Sure. these are things that I Sure. want to No, thanks. give। Yeah, No, thanks. Thanks, Tushar, for spending time with us and sharing your knowledge with the participants. So thank you very much. And I hope for those who are watching this, it was a fruitful session.
We'll meet until next time. So thank you everyone. Thank you, Tushar. Thank you so much. Thank you so much, everyone who are watching this right